So we want to understand when not to use for and when to use while. So this was our topic of discussion. When do we? Are you all able to see the paint No, sir. now? Yes, sir. Yes. So we have while, the two very famous loops in C. We have while Yes, sir. and we have for. Okay. Yes, sir. So when we use for is when the start and the end of the loop is known. Is known. When do we use while? When start is known but end is not known. Okay, sir. Yes, welcome Sohail and Abhay. Sohail is joining. So he'll join. So guys, simple thumb rule. When do we use while and when do we use for? When starting and ending of the loop is known, it's for, and when starting is known but ending is not known, it's for while. Okay. You know these guys who do home delivery of this pizza and this, what do you call this? Zomato and Uber Eat guys. Do you know them? Yeah. They have a While. motorcycle and they start delivering goods from one restaurant to Yes. other. So when this, so when you leave from your house and you want to go to college, so you know where you're leaving from Home to college. Yeah. and you know where you're going towards. Both are known to you, Yes, sir. or do you put a GPS and then search your college and then you go? No, sir. So you know from where you are starting and you know where you are going. Yes or no? Yes, sir. But this Uber Eats, the person or the which are the famous Zomato, right? Swiggy, got it, Swiggy. So this person when he goes to the restaurant, Yes, sir. he knows from where he has to start. The starting is known to him, the restaurant. Yes, sir. But he might get a delivery order to some remote place which he does not know. Yes or no? Yes, sir. Then he will use the Google Maps and then he will track and then he will go. So in the case of Zomato and Swiggy, the start is known, but the end is not known. And for us, when we go from home to college, the start also is known and the end also is known. So if you know the start and end of the loop, so if you know the start and end of the loop, we should use for. Like for example, if I want to say display your name 5 times, the first program which we did yesterday, how many times? 5 times. So do you know the loop starting from? Where will it start from? 1, And where will it go till? 5. So in such cases we will use for, because I know the start and I know the end as well. Start is known and end is known as well.
Yes or no? Yes, sir. Now when do we use while? So if I tell you accept a number and count its digits, count its digits. So if you enter 123, there are how many digits in this? If you enter 1 2 3 4, how many digits? In the first case there are how many digits? 3 digits. How many digits over here? If you enter 1 2 3 4 5, then 5 digits. so do we know what the user will enter? It's unknown. So we know he will at least enter 1. What will he enter? He will enter at least one number, no? Yes, sir. We know the start of it, but we don't know to what length he will enter. Will he enter 3 digits? Will he enter 4 digits? Will he enter 5 digits? That we don't know. So for such examples we will use while. Am I understood? Yes, sir. So if I say display the table of a number, accept a number and display its table, the program which we did today morning. Yes, but so that can be done in for also, right? Which one? Accept a number and print the table of that number. Yeah, so that is in for. Which column is it? Accept a number and display its table. So the table we learn from where? From 1 to 10, right? Yes, sir. We are taught 7 ones are, 7 twos are, 7 threes are till how much? 7 tens are. Yes, sir. 8 ones are, 8 twos are till 8 tens are. So I will start from where? 1. And I know the end also. I will go till where? 10. 10. So such cases you will use for loop. Am I understood? Yes, sir. And when you know the start but you don't know the end, which loop will you use? While. While. And now there are two flavors of while. There are two flavors of while. One is your while, then your condition, and then the body. And another is called do while. Is do the body and then while. After that condition. And after the condition you have to give a semicolon. You have to give a semicolon. Okay. Have you all travelled by the expressway? Mumbai Pune expressway. So if you get down at the petrol pump at the food mall, have you all ever eaten over there? At the food mall on Pune Mumbai expressway. Yes, sir. So if you go to eat something, he tells please take the token and then give the token at the counter and then we'll serve you. Yes or no? Yes, sir. So what is it? It is pay first and eat later. Yes or no? Yes, sir. So if someone has forgotten his purse at home, can he eat at the Mumbai Pune food mall? No. He does not know. He has left the purse at home. So when he goes to the token counter to take the token and when he puts his hand in the pocket, he sees the purse is not there. So can he eat anything? So what this does is, this is entry controlled. What is it? Entry control. Means where do you have to pay? At the entrance. Where do you have to pay? At the entrance. When you enter the restaurant. Yes or no? Yes, sir. And let's take example of this. Have you gone to any restaurant in Pune? Have you heard of Blue Nile? Yes, sir. So Blue Nile, what you do first? First, eat and pay.
You eat first and you pay later. So now you have eaten and you have not bought your purse. You have forgotten your purse at home, your wallet, and you don't even remember that you've forgotten your wallet at home. And now you have eaten your dinner. And now when you go to the pay and you tell him, "Kya I forgot the purse." So at least once you can eat. At least once you can eat. Second time he will blacklist you. Second time he will blacklist you. That please don't take such person inside. But if you have forgotten your purse, you cannot even eat once at the food mall. Yes or no? Is this logic clear? So the while condition, it checks the condition upfront. Where will it check the condition? Upfront. If the condition is true, it will allow you. If the condition is false, exit. Please don't come inside. It will not have mercy on anyone. If you have money, you eat. Don't have money, go. So if the condition is true for the first time, where will it go? If for the first time the condition is true, will you go inside the loop or outside the loop? And the first time condition is false, where will you go? Directly outside. But in do while, you will go in the loop once. At least once you will go. At least once you will go, and then you will check condition for the next time. If condition is true, it will allow you again. If condition is false, it will not allow you. But this loop will execute once at least. Am I understood with this? Yes, sir. We'll do the examples of them also. So are these two things clear? When do we use while? When do we use for? When do we use for? Or we use when the end and the start and the end of the loop is known. And while we use when the start is known but the end is unknown. सोहेल, समझ में आया? Yes, sir, आया sir. अभय, Yes, sir, आया. अमान, Yes, sir, आया. और while कब यूज करेंगे? When start is known but the end is unknown. End is not known. Okay, what is a, क्या बोलते हैं उसको? What is a prime number? Who can tell me? Okay, what is the Armstrong number? Do you know what is the Armstrong number? और चलो ठीक है, वो बाद में करेंगे. और दूसरा सेशन, दूसरा टॉपिक क्या था आज का? वाइल के कितने फ्लेवर्स हैं? वाइल के कितने फ्लेवर्स है? वाइल के पहला वाला कौन सा है? While condition. और फिर लूप का बॉडी. वाइल कंडीशन और फिर लूप का बॉडी. तो कंडीशन का पहले है क्या बाद में है? पहले. और ये लूप का बॉडी है. तो अगर कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो नहीं एंटर होगा वो लूप के अंदर. वेरी गुड. और डू वाइल क्या करता है? डू वाइल वो लूप के अंदर ले लेगा. एटलीस्ट एक बार तो ले लेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा. अगर ट्रू रहेगा तो फिर से लेगा और फॉल्स रहेगा तो बाहर कर देगा. पर एक बार तो लूप में जाएगा ही. ये समझ में आया? वेरी गुड. और अभी आप सुबह एग्जांपल दिए थे ना सर, तो हाँ हाँ यस सर वो होमवर्क का वो सर एक्सप्लेन कर सकते हो सर, फॉर लूप द व्हाइल लूप. हाँ मैं करता हूँ. मैं अभी सर वो एरर आ रहा है सर. ठीक है मैं करता हूँ. पहले अभी मैं एक और टॉपिक कवर करता हूँ, फिर वो एक्सप्लेन करूंगा. ओके, अभी मेरा तीसरा टॉपिक है आज का. ये सब प्रोग्रामिंग के बेसिक्स ही है. अगर आप कंफर्टेबल होगा ना इसमें तो आपको प्रोग्रामिंग करने में बहुत अच्छा लगेगा. तो दीज आर ऑल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऑल बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग. ओके, वन मोर थिंग. ओके,
ओके भाई, ये कौन सी मशीन है? किसको दिख रहा है? ये जूसर है, राइट? तो इसको इनपुट क्या देते हैं हम लोग, और ये हमको आउटपुट क्या देती है ना? और जूस के जो आते हैं ना, वो जो उसका फाइबर आता है, फाइबर और उसके बीज आते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वेस्ट के अंदर वो जाते हैं वेस्टेज में। ये समझ में आया लॉजिक? यस सर। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर दो मशीन है। कितने मशीन है? दो मशीन है। वो मशीन हमको याद रखना है और उसको प्रैक्टिस में लाना है। तो उसको प्रोग्रामिंग के अंदर दो मशीन है, हम उस मशीन को इनपुट देंगे। क्या देंगे? इनपुट देंगे और वो मशीन हमको आउटपुट देगी। तो उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म होगा, प्रोसेसिंग का कुछ मैकेनिज्म होगा उसके अंदर, जिससे वो प्रोसेस करेगी उसको और हमको आउटपुट देगी। यस और नो? तो वो पहली मशीन है, वैसे दो मशीन है। कितने मशीन है? तो कुछ इनपुट भी देगी और कुछ वेस्टेज भी देगी। व्हाट डू वी डू टू द वेस्टेज? व्हाट डू वी डू टू द वेस्टेज? व्हाट डू वी डू टू इट? एंड व्हाट डू वी डू टू द आउटपुट? यूज करेंगे। समझ में आ रहा ना? तो वेरी गुड। तो ये दो मशीन समझो, और ये उसका वेस्टेज रहेगा। तो ये उसका आउटपुट है और ये उसका वेस्टेज है। वेस्टेज को थ्रो कर देने का, रखने का नहीं। तो वो दो मशीन हमको बार बार लगने वाली है लूप के अंदर। तो वो दो मशीन कौन सी है? एक है डिवाइड बाय 10। एक क्या है? डिवाइड बाय 10। और एक है मॉड बाय 10। एक क्या है? मॉड बाय 10। डिवाइड बाय 10 ऐसी मशीन है, उसको आप कोई भी नंबर दोगे। तो मैंने क्या नंबर एंटर किया उसको? 1 2 3। इनपुट क्या दिया मैंने उसको? तो वो क्या करेगा, जो लास्ट नंबर है ना, लास्ट नंबर, उसको वेस्टेज में डाल देगा। क्या डाल देगा? और मुझे वो बाकी जो बचा हुआ नंबर है वो दे देगा मुझे। तो क्या देगा मुझे आउटपुट? 12। समझ में आ रहा? लॉजिक समझ में आ रहा है इसका? यस सर। और मॉड बाय 10 जो मशीन है, उसको मैं इनपुट दूंगा ना, तो मेरे को वो लास्ट डिजिट आउटपुट देगा और बाकी वेस्टेज कट कर देगा। ओके सर। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो अभी दोनों मुझे बोलो, 576 डिवाइड बाय 10 क्या आएगा आउटपुट? क्या आएगा वेस्टेज? 57 वेस्टेज 6। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। वेस्टेज क्या है? सर वो पॉइंट वाला होगा इसके अंदर वेस्टेज 57.6, तो वो पॉइंट वाला नंबर बाहर निकल गया। नहीं, उसका देखेंगे। अब अगर मैं ये करूं 576 मॉड 10, तो 6 आउटपुट होगा 57। तो मॉड 10 सिंपल याद रखो, मॉड 10 क्या देगा आपको? लास्ट डिजिट देगा। क्या देगा? और बाकी को वेस्टेज कर देगा। बाकी को क्या कर देगा? वो वेस्टेज कर देगा। इसका लॉजिक याद रखो बस, ठीक है? समझ में आ गया? ये सिंगल डिजिट हो तो सिंगल डिजिट बोलो तो क्या? 1 मॉड 10 है ना? तो 1 कैन बी रिटन एज 0 1। यस और नो? यस सर। 1 लिखो या 0 1 लिखो, एक ही बात है ना? तो क्या आएगा बोलो इधर? 0 आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा इसका? वेस्टेज 1। ये 0 आउटपुट आएगा, वेस्टेज हो जाएगा। आएगा। समझ में आ रहा है? और वो यहाँ करूँ तो अगर मैं 1 अगर मैं यहाँ करूँ तो व्हाट इज 7 डिवाइड बाय 10? व्हाट इज 7 मॉड 10? तो ट्रीट 7 एज 0 7। ट्रीट 7 एज, तो क्या वेस्ट, क्या आउटपुट क्या आएगा? 7।
और वेस्टेज? 0. Am I clear with these two machines, guys? Yes, sir. चलो वेरी गुड. अभी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे बेसिक वाले, ठीक है? तो अभी हम प्रोग्राम लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स. क्या करेंगे? Sum of digits. तो अगर किसने एंटर किया 123 तो आउटपुट क्या आएगा? तो अगर आपने इसके अंदर इनपुट दिया है 123 तो आउटपुट क्या एक्सपेक्ट करने का? 1 + 2 + 3 क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? समझ में आया? तो आउटपुट क्या आएगा? Yes, sir. 6. तो और अगर किसने इनपुट दिया 1 + 2 + 3 1 2 3 4 तो आउटपुट क्या आएगा? 10. Is the question clear, everyone? क्वेश्चन क्लियर है? सोहेल, अभय, अमान, सिद्धार्थ, Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर है ना? तो अभय का आंसर आया बस, Yes, sir. अमान का आया अभी, सिड का आया अभी. Got it right? तो how will we achieve this? तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट. हैश इंक्लूड, जल्दी बोलो. उसके बाद ब्यूटीफुल, क्या बात. उसके बाद उसके बाद लास्ट में नीचे क्या आएगा? लास्ट में एकदम नहीं, मैं पहले उसका जो है ना स्केलेटन, पहले वो बना रहा हूँ स्केलेटन प्रोग्राम का. ठीक है, स्केलेटन रेडी. तो अभी जो हमको इनपुट नंबर लेना है उसके लिए वेरिएबल ले लेंगे हम लोग. क्या लेंगे? इंटीजर n. और जिसमें हमको सम स्टोर करना है वो भी ले लेंगे वेरिएबल इंटीजर सम. यस और नो? Yes, sir. ओके, फिर क्या बोलेंगे? यूज इसको एक लाइन में ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते. अगर दोनों एक ही टाइप के तो ले सकते, नो प्रॉब्लम. यस, ठीक है. Okay, sir. अब क्या कर रहा हूँ? प्रिंट है क्या? प्लीज एंटर अ नंबर. उसको स्कैन करेंगे. अभय बोलो स्कैन कैसे करेंगे इसको? %d. क्या बात है, एक्सीलेंट. और N. ठीक है. तो अभी आप जब भी प्रोग्राम लिखोगे आपको वेरिएबल के अंदर क्या है मालूम होना चाहिए. यू शुड नो दैट. सी यू हैव सीन बिजनेसमैन हु रन शॉप्स. यस और नो? जो मोबाइल शॉप रन करते हैं, कोई भी गारमेंट शॉप रन करते हैं, कोई भी फिनिक्स के अंदर कोई स्टोर रन करते हैं, तो वो ओनर को, जो स्टोर कीपर है, उसको मालूम रहता है क्या मेरे दुकान में कौन सा माल आया, कौन सा माल गया, आज मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया या आज क्या लॉस हुआ. डज ही नो दैट एवरीथिंग? क्या ही इज अनअवेयर ऑफ इट? तो ऐसे ही आपको वेरिएबल के अंदर क्या है क्या नहीं है आपको उसका अवेयरनेस होना चाहिए. तो आपके पास वेरिएबल कितने बोलो? कितने वेरिएबल आपके पास? तो एक वेरिएबल है n. दूसरा वेरिएबल कौन सा है? सम. तो n के अंदर क्या है? आपने नंबर क्या लिया यूजर से इनपुट में? 1 2 3. और सम में क्या है? सम में अभी गार्बेज वैल्यू है. सम में अभी क्या है? सम जस्ट डिक्लेयर हुआ है ना, तो उसमें क्या है? गार्बेज वैल्यू है. तो उसको इनिशियलाइज कर दो 0 से. क्या कर दो? इनिशियलाइज. किससे कर दो इनिशियलाइज? सम को. Okay, sir. तो सम में अभी क्या आ गया? Sir, क्यों initialize करते हैं? ताकि जो गार्बेज वैल्यू निकल जाए ना उसका, उसमें गार्बेज वैल्यू रहता है, कचरा पट्टी वैल्यू रहता है उसके अंदर, कुछ भी उसके अंदर 8 7 1 2 ऐसा कुछ भी वैल्यू रहेगा, कचरा पट्टी वैल्यू रहेगा. तो हमको वो यूज करना है क्या? नहीं सर. तो हम क्या करेंगे? उसको कचरा निकाल देंगे और क्या डाल देंगे उसके अंदर? 0. तो अभी आपके n में क्या है बोलो? 1 2 3. और आपके सम में क्या है?
0. अब यहाँ पर आई विल यूज अ लूप. विच लूप विल आई यूज? फॉर क्या वाइल? For loop sir. Or while. फॉर क्यू? वाइल कौन बोला? हु टोल्ड वाइल? हु टोल्ड वाइल? Aman sir. अमान. अपने नाम के आगे +1 देना, ग्रुप में डालना अमान +1. दैट इज यू अर्न अ रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ +1. I'll explain the reward point system later on, but अब चैट पे डाल दो अमान +1. भाई जो नंबर डाला है उसने, डिड यू नो कि वो क्या डालेगा? डिड यू ऑल नो कि वो कौन सा नंबर डालने वाला था इनपुट? Yes sir. डिड यू ऑल नो? आपने जब उसको बोला यूजर को एंटर अ नंबर, डिड यू ऑल इन योर ड्रीम कम टू नो कि व्हाट नंबर यू विल पुट? he can enter any number, no? Yes sir. तो हाउ डू यू नो कि उसका एंडिंग क्या होने वाला है? तो 3 डिजिट है कि 4 डिजिट है कि 5 डिजिट? हाउ डू यू नो? तो कौन सा लूप यूज करेंगे? While loop. ये कौन बोला? एक ही आदमी बात कर रहा है सिर्फ. कौन बोला वाइल लूप अभी? मैं सर while. सोहेल को समझ में आया, बाकी अभय, अमन, सिद्धार्थ समझ में नहीं आया. Sir while loop. वाइल लूप ना, क्योंकि वो कौन सा नंबर एंटर करेगा वी डोंट नो, राइट? ही कैन एंटर 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, वी डोंट नो. सो इसके लिए वी कांट यूज फॉर ओवर हियर. ठीक है? तो अभी लूप लगाने का है अपने को. लूप कौन सा? वाइल वाला. देखो अब मैं क्या करूंगा मालूम है क्या? इस नंबर को एक एक कट करते जाऊंगा. क्या करते जाऊंगा मैं? नंबर को एक एक कट. तो पहले क्या कट करूंगा मैं? 3. और किस में ऐड करूंगा उसको? तो सम क्या बन जाएगा फिर? 0 + 3 3. अब मैं 2 कट करूंगा तो 2 + 3 5. और फिर 1 कट करूंगा, 5 + 1 6. और कोई भी नंबर के आगे पहले क्या होता है? 1 2 3 सेम एज 0 1 2 3. कुछ डिफरेंस है क्या? No sir. तो जब तक मेरा 0 नहीं आ जाता, जब तक क्या नहीं आ जाता, 0. मैं ये काम करता रहूंगा, लूप चलती रहेगी. तो अभी देखो तुम लोग. So while your n is greater than 0, what is the logic? कंडीशन क्या दिया है मैंने? N is greater than 0. What is the value of n? Sir we don't know. है ना भैया, लिखा हुआ ना भाई. What is the value of n? हाँ 1 0 1. तो is 123 greater than 0? कंडीशन क्या है? True. ट्रू क्या फॉल्स? तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है? इफ 123 ग्रेटर देन 0, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रू बोलेंगे कि फॉल्स बोलेंगे आप लोग? तो लूप के अंदर जाएंगे हम लोग. क्या जाएंगे? Yes sir. और हम लोग एक और वेरिएबल लेंगे, रिमाइंडर. क्या वेरिएबल लेंगे? Reminder. उसमें n का लास्ट डिजिट निकालेंगे. क्या निकालेंगे? N का लास्ट डिजिट. तो कैसे निकालेंगे n का लास्ट डिजिट? कौन सा मशीन यूज करने का इसमें? सर ये वाला मॉड 10 वाला. सर. तो हम लोग अभी देखो क्या करेंगे. रिमाइंडर में क्या जाएगा? n mod with 10. तो रिमाइंडर में क्या गया बोलो अभी? रिमाइंडर में क्या गया? 3 आ जाएगा. 3 गया ना रिमाइंडर में. यस सर. और ये सम 0 था ना.
ये पार्ट हमारा नहीं हुआ था अब तो एग्जीक्यूट, तो छोड़ दो इसको। तो रिमाइंडर में क्या क्या बोलो। 3 आ जाएगा सर। नाउ सम और रिमाइंडर को ऐड करो, क्या आएगा? 3 और वो किस में स्टोर होगा? कौन से वेरिएबल में स्टोर होगा वो? रिमाइंडर और सम कौन से वेरिएबल में स्टोर होगा? सम के अंदर सर। सम के अंदर। तो हम ऐसा लिखेंगे उसको, सम इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर। क्या बोलेंगे? सम इक्वल्स टू, तो सम में कितना है? सम में कितना था पहले? 0 था सर। और रिमाइंडर में कितना था? 3 0 प्लस 3 कितना होता है? 3 होगा। वो 3 किस में जाएगा? LHS में कौन सा वेरिएबल है? LHS में कौन सा वेरिएबल है? LHS में सम। तो सम का आंसर और रिमाइंडर का आंसर दोनों किस में जाएगा? ऐड होके सम में जाएगा। सम के अंदर। तो सम में आ गया 3, है ना? अब 3 का काम हो गया ना, अब 3 कट करना है। 3 ने अपना रोल प्ले कर दिया। अब 1 2 3 में से हाउ डू आई कट 3? I want 0 1 2, I want only 0 1 2, क्योंकि 3 ने अपना काम कर दिया है कट कर देने का। उसको कैसे करेंगे? 0 1 2 3 में से आउटपुट 0 1 2 चाहिए। कौन सा मशीन यूज करूं? मोड वाला सर। मॉड में लास्ट डिजिट में, लास्ट डिजिट मुझे ये चाहिए। 576 में से आई वांट 57। लास्ट डिजिट को वेस्टेज करना है, वेस्टेज लास्ट डिजिट को। ये डिवाइड वाला सर। तो क्या करेंगे अभी? देखो हम लोग n को डिवाइड करेंगे 10 से। किससे करेंगे? तो 0 1 2 डिवाइड बाय 0 1 2 3 डिवाइड बाय 10, क्या आएगा इसका आंसर? 0 हाँ, 0 1 2 और वो कौन से वेरिएबल में जाएगा? कौन से कॉलम में लिख रहे हैं हम लोग उसको? n के। तो वो n में। तो LHS में क्या रहेगा? n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10। लूप 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 फिनिश हो गई। तो फिर से कहा जाएगा ऊपर वो लूप इज फिनिश, नो? यस सर। देन इट विल अगेन गो ऑन द टॉप। कंडीशन क्या है? n greater than 0। सो इज 0 1 2 ग्रेटर देन 0? कंडीशन इज ट्रू। लूप के अंदर जाएंगे। रिमाइंडर में क्या जाएगा? n not 10। तो क्या n mod 10 क्या होगा अभी? n में क्या है? 0 1 2 ना। लास्ट डिजिट क्या है इसका? 2 है सर। तो रिमाइंडर में क्या जाएगा? 2। और ऐड ना, व्हाट विल वी ऐड? विल ऐड 3 plus 2 ना, सम प्लस yes sir, सम प्लस रिमाइंडर। एंड विल गो इन विच वेरिएबल? सम। तो सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। तो सम क्या बन जाएगा अभी? 5 बन जाएगा सर। यस करेक्ट, सम बन गया अभी 5। अब 2 ने भी अपना काम कर दिया, तो 2 को भी वेस्टेज करना है। तो I want to remove 2 also. I just want 0 1. I just want what? 0 1। तो कौन देगा 0 1 2 में से 0 1 मुझे? कौन देगा? n डिवाइड बाय 10। यस सर। तो फिर आउट, तो अभी n का वैल्यू क्या हो गया? 0 1। 0 1। लूप खत्म हो गई। यस सर। फिर से ऊपर जाएगा। इज 0 1 ग्रेटर देन 0? यस सर। यस और नो? तो ट्रू। क्या करना फिर अभी? 0 1 का लास्ट डिजिट क्या है?
1 रिमाइंडर 1 आएगा सर। तो कैसे करेंगे हम लोग अभी? तो n mod 10 इज इन द रिमाइंडर, रिमाइंडर में क्या आएगा? 1 not 10 तो रिमाइंडर में आ गया 1, और क्या करेंगे? सम और इसको ऐड करेंगे, तो सम क्या बन गया? 6, और इसमें 1 को भी डिलीट कर देंगे अभी। तो अभी क्या बचा अपने पास? 0 बचेगा सर। तो 0 इज 0 ग्रेटर देन 0? नो सर। Loop will become false, and then what should we display after the loop is finished? What should we display? 6 So after the loop is over, just display the display which variable? सम। ये हो गया बस प्रोग्राम। समझा? ये है while loop, और ये है रिमाइंडर डिक्लेयर करने का रह गया। हाँ, रिमाइंडर डिक्लेयर करना रह गया। वेरी गुड, क्लियर? So try this program and I'll give you like this more programs to solve. ये था sum of digits ना? एक तुम लोग मुझे करके दिखाओ, count the number of digits। क्या था? एक वर्ड में कितने डिजिट्स है वो काउंट करके दिखाओ। तो 1 2 3 में कितने डिजिट्स है? इसमें कितने हैं? 4 तो हमको सिर्फ क्या करना है, जब जब वो लूप के अंदर आ रहा है तब तक क्या करना है? सम को इंक्रीमेंट करना है, बस। सम प्लस प्लस, और एंड में सम दिखा देना है बस। तो जितने बार लूप चलेगी उतने डिजिट्स रहेंगे इसके अंदर। समझा? चलो, the session is coming to an end. I'll upload this video. Look at the video and try the programs and ask me doubts if you all have any. कर दो भैया, अगर कर रहे हैं तो।